इफ यू आर प्रिपेयर्ड एंड आपको प्रेजेंट करना है कैमरा ऑन करके, ये ध्यान रखिएगा, आपको कैमरा ऑन करके प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो आप हैंड रेस कर लीजिए जो भी बच्चे यहाँ पर तैयार हैं। यस सौरभ, आपने कल ही चेक करवाया था ना मेरे से? क्या मैम? आपने कल मुझसे स्पीच चेक करवाया था ना? नो मैम। अच्छा, तब कोई और आएगा, कोई बात नहीं, यू कैन स्टार्ट योर स्पीच। मैम, गुड मॉर्निंग मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू for giving me this opportunity. Introduce myself, Saurabh Kumar. I am from BCA PPU second year. Today discuss the topics. Do exam result alone decide the future of a child? Just as a study is necessary for the student, in the same way, examination is necessary for the student because examination motivate the students to learn more. The exam forces the students to do more research on the topics learned in the class so that they can understand the given topics. We often see parents or teacher or guardians pushing a child to perform really well in their exams, and often we see children being analyzed using the marks they get for the exam. Here is the real question: do test results alone determines a child's eligibility? Many a times we fail to recognize the talent and potential of the children apart from what they are capable of presenting on a paper during the exam, and it is an abstract pressure on the children to perform well to prove their worth. Puts as adults and parents, we need to realize that there is a difference between being a street smart and being a school smart. A child can be a school smart or a street smart, and is in some rare case they can be both. It is important to ensure that we do not undermine a child's worth by evaluating them on the basis of their academic performance. Earlier, most of the institute gave their admission on the basis of marks, often during the entrance test, and now there are several stages where the talent of a child can be assessed and analyzed solely, but surely we as a society are evolving into a more inclusive environment where children from different background and different interested are fostered and explored, developing this problem of anxiety and stress at a very young age, because we give important to these exams. Instead, we should resource them that no single test determines their value and future, and it is okay for them is mistakes. Many students who are able to do well in other
areas of life. Many not have in a school, and this is important to remember when guarding the younger generation. As adult, it is a generally accepted fact that marks alone cannot be the basic for measuring success. And in your future, understand mistaking of life. We many have rarely applied direct textbook knowledge to find solution. That's it, ma'am. All right. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सौरभ बहुत ही ज्यादा ही स्लो था, थोड़ा सा आप रीडिंग टाइप का नहीं लगना चाहिए, ठीक है। यहाँ बोलने से पहले आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, ठीक है। जो Okay. आपका डर झिझकना था ना, वो आपकी वॉइस में ये सब चीज पता चलती है जब आप रीड करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजों का आप ध्यान रखेंगे, फिर उसके बाद हम फर्दर बताएंगे क्या क्या डेवलपमेंट हो सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट, एनीबडी एल्स? बाकी रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, यू कैन रेज योर हैंड इफ यू आर रेडी फॉर योर स्पीच, ठीक है। वन बाय वन आई विल अलाउ यू। मैंने म्यूट इसलिए कर रखा है ताकि आप जब कोई पर्सन स्पीच दे रहा है तो बीच में कोई डिस्टर्बेंस ना क्रिएट, ठीक है। यस, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, आप लोग प्रिपेयर करके नहीं लाए हैं स्पीच? बच्चे डरना नहीं है, जैसा भी है वैसा आप बोल सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पर कोई भी आपको ह्यूमिलिएट नहीं करेगा, कोई भी परेशान नहीं करेगा। जैसे बोलना चाहते हो वैसे बोल, ठीक है। आपको जितना इंकरेजमेंट चाहिए, टाइम मत लीजिए, जितना आप टाइम लेंगे उतना ज्यादा आपको परेशानी होगी। जितना आप सोच रहे हैं बोलने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक काम करते हैं, आप लोग जो यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, आपने अगर लिखा है चाहे नहीं लिखा है, टॉपिक तो सबको पता होगा, ठीक है। टॉपिक के बेस के ऊपर अगर आप को लग रहा है कि इंग्लिश बोलने में दिक्कत आ रही है, तो आप हिंदी में बोल सकते हो उस चीज को। जो भी आप टॉपिक के बारे में बोलना चाह रहे हो, आप हिंदी में समझा सकते हैं क्या बात, आप क्या सोचते हैं उस टॉपिक के बारे में। टॉपिक मैंने आपको सब्जेक्ट सॉरी रोल नंबर वाइज दिया था, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई स्टूडेंट नहीं आया था जिसको टॉपिक नहीं पता है, तो वो बता दो फिर। मेरे पास टॉपिक शायद रखा हुआ है यहाँ पर, अगर नहीं भी रखा हुआ है तो आई विल गो टू दैट वीडियो एंड टेक अ स्क्रीनशॉट एंड देन आई कैन सेंड इट टू इन योर ग्रुप, ठीक है। जो भी टॉपिक है उसके बारे में आप जो भी सोचते हैं ब्रीफली, जरूरी नहीं है कि आपको पूरा स्पीच ही देना है, ठीक है। ब्रीफली जो भी आप सोचते हैं उस टॉपिक के बारे में, वो इंग्लिश हिंदी जिस भी तरीके से आप बताना चाहते हैं बता सकते हैं। जल्दी जल्दी हैंड रेस कर लीजिए, ठीक है। टॉपिक के बारे में अगर सोचना है, इतना ज्यादा सोचना पड़ रहा है आपको बोलने के लिए, तो दैट मीन्स आपने या तो टॉपिक पढ़ा नहीं है या फिर आपको गैदर करने के लिए अभी भी आइडियाज चाहिए। ओके, यस, रंजन, कैमरा ऑन कर लो बच्चे एंड यू कैन गो अहेड एंड स्पीक। मैम अभी मैं लैपटॉप से कनेक्ट हो रहा हूँ। ठीक है, हाँ मैं रीजॉइन कर लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अगर आपके डिवाइस में प्रॉब्लम है, मोबाइल में दिक्कत है, तो आप लैपटॉप से कोई भी दूसरे सिस्टम से ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि अगर नेटवर्क इशू आ रहा है या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो आप रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ा बैरियर इस मोड में यही है कि हमारा नेटवर्क प्रॉब्लम होता है, ठीक है। यस, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, आप में से कोई ऐसा है जो प्रिपेयर करके लाया है? अगर नहीं भी प्रिपेयर किया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो भी टॉपिक है उसमें आप जो भी बोलना चाहते हैं आप आराम से बोल सकते हैं यहाँ पर। यस, सांकेत,
वैसे इफ यू वांट टू डिलीवर द स्पीच, इंग्लिश हिंदी कोई दिक्कत नहीं है, देखो मुझे लैंग्वेज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अगर हिंदी में भी बोल सकते हैं तो बिल्कुल बोल सकते हैं। मुझे बस आपका ये जो झिझक है ना बोलने की, ये हटानी है मुझे। अनम्यूट नहीं हो पा रहा है बच्चे? आई एम गिविंग यू परमिशन टू अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, ma'am. हाँ, स्विच ऑन करिए कैमरा एंड यू कैन स्पीक अबाउट दैट। गो अहेड। यस। Good morning, ma'am, and my dear friends. My name is Sanket, and today I will share about my idol person. First of all, I will explain the term idol. The term idol refers to a greatly loved or admired person. The person whom we follow in our daily life, learn from him, copy his style, activities, and gets inspired from him are our idol person. My idol is my father. My father was a great personality himself. His approach towards life was totally different. He said that we should give life our very best rather than expecting the very best from life. He is the only one I look at. I evaluate the conscience of my decisions looking at him. I imagine what he would have decided if he had to take this decision. It makes my life a lot easier. It was my father who taught me to value myself. I never had much trust in myself, but my father always showed and proved to me that I can do, and I set my mind to. He was the one who showed me my worth. My childhood memories are full of his unconditional love, fun, and laughter. It was always a fruitful time spent with him. I get to learn new things about life, his business, and many more things. I get to learn how to keep others happy and still take work from them in the best possible way. According to him, appreciation is a magical word. You can just say a spell of appreciation and you will see the person you appreciated doing magical things. He taught me how to have a holistic approach to everything. Now he's not with me, but still his words are revolving around me. Every time when I stuck in my life, these words help me a lot. That's all, ma'am. Thank you. All right. Again, try to not read the sentences. ठीक है, other than that फिर उसको हम ग्रूम करेंगे धीरे धीरे। अभी पहले झिझक जो है आपकी बोलने की वो पहले हटा लेते हैं, ठीक है? Yes, Ranjan, if you're ready, let me know, and by the time, in the meantime, Prashant, you can go ahead and start your speech. Yes, ma'am. Okay. Camera on कर लीजिए। First of all, good morning, ma'am, and all my dear friends. My name is Prashant Singh. I am from Vaishali. Today, I am here to present my thoughts on water pollution. Water is the most important resource for survival on a planet. It is essence of life on Earth. Nowadays, we are facing a very serious problem of water pollution. Water pollution is the contamination of water body like lakes, rivers, ocean, and groundwater. Usually caused due to human activities, water get polluted because of domestic swag from village and cities is disposed in river water. Use of fertilizer in agriculture activities can also affect water. So we can work together to keep the environment clean and people who depend on it remain healthy. Thank you, man. Okay. All right, Ranjan, let's take it from here. You can improvise by not like वो जो reading वाला tone है ना, उसको आपको change करना है। तो उसके लिए बार बार read करके, बार बार पढ़ कर आप यहाँ पर उस चीज को, tone को change करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? Okay, ma'am. Okay.
Yes, Ranjan, if you are ready, I'm giving you permission to unmute yourself and you can go ahead and start your speech. Ranjan, I don't think so we are able to hear your voice if you're speaking. आपका इमेज भी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं आ रहा है और वॉइस भी नहीं आ रही है. आपकी ऑडियो डिवाइसेस कनेक्टेड हैं? Okay, Ranjan, either you are not speaking or you are not audible. आप अनम्यूट हैं लेकिन कोई भी वॉइस नहीं आ रही है आपकी तरफ से. No, I cannot hear your voice. Check your audio device. नहीं बच्चे, तो आपका आवाज नहीं आ रहा है रंजन. आप एक बार ऑडियो डिवाइस अपना दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करिए. ऑडियो अपना रिजॉइन करके या फिर कुछ भी करके ऑडियो अपना डिस्कनेक्ट करके दोबारा से कनेक्ट करिए. बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है इधर. ठीक है. All right. Anybody else? By the time Ranjan is preparing for the audio and video devices. Yes, तो बच्चे मेरी आवाज भी अगर नहीं आ रही, that means you have to check your audio devices. ठीक है. Yes, Saurabh. मैम उसको रंजन को बोलिए डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट होने के लिए. I have told him. Chat box के through I have told him because मेरी भी आवाज उसको नहीं जा रही थी. I have told him. Okay, ma'am. Yes. Anybody else? Rest of the students, आप लोग में से कोई अगर प्रिपेयर है तो you can give. और एक बच्चा मुझे यहाँ पर बोल रहा है. अच्छा, नेटवर्क आपका खराब है. कौन है ये बच्चा? बिपिन. ओके बिपिन, डोंट वरी. अगर नेटवर्क इशू है तो आप इसी तरह मैसेज कर देंगे तो आई विल नो एटलीस्ट, क्योंकि आपको मैंने बताया ही है रिकॉर्डिंग ऑन है. दैट मीन्स योर चैट बॉक्स इज आल्सो बीइंग रिकॉर्डेड. रिकॉर्डिंग हो चाहे लाइव हो. यस, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ पर प्रेजेंट कर सकते हैं अपना स्पीच. एंड अगेन आई हैव गिवन यू परमिशन. अगर आपको इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम आ रही है या लग रहा है कि आपका ग्रामेटिकल एरर होगा, टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, तो वो भी बता सकते हैं. एक बच्चे ने मुझे भी मैसेज किया है कि उसे टॉपिक नहीं मिला है, तो मैं टॉपिक आपका मैं सेंड कर दूंगी आपके ग्रुप में. ठीक है. अभी तो आप प्रिपेयर नहीं कर पाओगे. अगर मैं दे भी देती हूँ टॉपिक तो मैं टॉपिक आपको सेंड कर दूंगी. प्रिपेयर करके आप नेक्स्ट क्लास दे सकते हैं. इंग्लिश हिंदी जरूरी नहीं है. यू कैन यूज हिंदी लैंग्वेज. ठीक है. मुझे यहाँ पर हो गया. यस. audible? Hello. Yes, you're audible. Yes, you're audible. Yes, camera on Thank you. करिए and First you of all, can give thank you your. all of you. Yes, start. First of all, thank you all of you to giving this opportunity to me. Good morning, all of you. My name is Ranjan Kumar and I am from District TTU second year. My roll number is 19. Today I am going to present my view on topic. What is effect of exercise on learning ability of a student? First of all, I would like to say that
Exercise is the best source to develop ability and health. Exercise is useful for all people in whole life. With the help of exercise, a mind develops more ability to handle any complex task. Exercise makes people perfect. It also helps to develop our mind to think fast and solve complex tasks in a few moments. I suggest all of you today, please keep your exercise every day in your life. With this word, I would like to conclude my speech. Thank you all of you. That's all. All right. Ranjan, again थोड़ा सा आपका जो स्पीच था वर्ड्स उसके क्लियर नहीं थे. आप जो बोल रहे थे वो रीड कर रहा है इस तरह लग रहा है, तो उसको थोड़ा और प्रैक्टिस करिए. ठीक है, धीरे धीरे हो जाएगा, डोंट वरी. कंटेंट में आपके किसी में भी प्रॉब्लम नहीं है. जितने भी बच्चों ने प्रेजेंट किया है उनमें से किसी के भी कंटेंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. द ओनली थिंग इज कि आपके इमोशंस उसमें अटैच नहीं है, और यही रीजन है कि मैंने आपको हिंदी में बोलने की परमिशन दी है. आप लोग जो भी यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं, ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर इमोशंस डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं. आप यहाँ पर अपनी बात, अपना खुद का ओपिनियन नहीं रख पा रहे हैं. So for that purpose, I have given you permission. You can speak in Hindi, but you have to tell about what you feel yourself. आप खुद क्या फील करते हैं, जो टॉपिक दिया गया है उसके बारे में वो आप मुझे बताएंगे. ठीक है. Rest of the students, if you are going to present the speech, just raise your hand. अगर आप तैयार हैं, इंग्लिश हिंदी, you are allowed to switch the language. You are allowed to speak whatever you feel like. लेकिन जो टॉपिक दिया गया है अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वो भी बता दो हैंड रेज करके, that you are not able to understand the topic. Yes, Tarun. Yes, you can start your speech. Good morning, all of you. My name is Tarun Kumar. I am a BCA student of Siemens College, Patna. I am here to present my views on laughter is the best medicine in a space. People say that laughter is the strong medicine. It controls people together in such way that trigger health physically and emotionally variation in the body of the peoples. Laughter makes our immune system stronger, boosts our bodies, reduce pains, and protect us from the damaging and harmful effect of the stress and tensions. Nothing work faster than a good to bring our minds of our body back into balance by relaxing them. It also helps to release anger and forgiving people quicker than a normal mood. Conclusion. Overall, laughter is the best therapy, as well as all know that it only positive result. Laughter can make you a good person and can bring a drastic change in our life. It can help many things in our life. Sometimes laughter is the only that be required for healing ourselves from something bad happened with us in the past. So laugh as much you can, throw out a stress out of our head. Thank you, ma'am. Okay. All right then. Anybody else? Again, Tarun, your content was good. आपके जो लिखा है उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. जिस तरह आपने बोला है उसमें आप रीड कर रहे हैं, ऐसा नहीं लगना चाहिए ऑडियंस को. ठीक है. If you want, do you want to say something? All right. Anybody else? कोई और स्टूडेंट है जो यहाँ पर प्रिपेयर्ड है अपने स्पीच के लिए? ओके, लेट्स डू वन थिंग. मैं एक चीज बताती हूँ. अगर आपको हेजिटेशन हो रही है अभी भी बोलने में, तो इस चीज को आप कैसे दूर कर सकते हो ऑन रेगुलर बेसिस. ठीक है. सबसे पहले तो आप जब भी यहाँ पर देखिए, अगर दो तरीके होते हैं, ठीक है, और दोनों के लिए बहुत सारे चीजें जो होती हैं, इंग्लिश और कम्युनिकेशन दोनों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती हैं. व्हाट यू कैन डू इज, since you're not you can say you are going to be in third year very soon. ठीक है. कुछ महीनों में आप थर्ड ईयर में चले जाएंगे, तो आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है. आप कह सकते हैं कि आप बहुत लंबा चौड़ा प्रिपरेशन करें. ठीक है, इंग्लिश या फिर कम्युनिकेशन सीखने में.
तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताती हूँ जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। और आपके जो टाइम ड्यूरेशन है, मुझे पता है कि आप इतना लंबा चौड़ा क्लासेस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपके पास टाइम नहीं रहता है कि आप अलग से कोई एक्टिविटी करें। तो लेट्स डू वन थिंग, हम यहाँ पर मैं एक चीज बताती हूँ जिससे आपको जो करंट सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसमें भी हेल्पफुल रहेगा, प्लस आपका कम्युनिकेशन और इंग्लिश दोनों ही इम्प्रूव करेगा। सबसे पहली चीज, जब भी आप प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर होते हैं, क्वेश्चन आंसर जो रहते हैं अदर देन कोडिंग, ऑब्वियसली आपके कोड्स बहुत सारे रहते हैं, लेकिन स्टिल देयर आर सम थिंग्स, कुछ तो थ्योरी होता होगा जो कि आपको इंग्लिश में ही लिखना होता है। उसके आंसर तो एग्जाम में आप हिंदी में नहीं ना लिखोगे, वो तो इंग्लिश में ही लिखने हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले जब भी क्लास में टीचर से कोई क्वेश्चन पूछते हो, ट्राई करो कि इंग्लिश में पूछो और बेझिझक पूछो, डरना नहीं है। कोई भी टीचर ऐसा नहीं है जो आपको क्वेश्चन पूछने पे मारता है या नहीं समझाता है। हर टीचर समझाते हैं आपको डाउट। तो आपको करना क्या है कि डाउट हमेशा पूछिए, कोशिश करिए कि इंग्लिश में पूछने की कोशिश करें। अगर नहीं हो पा रहा है तो हिंदी में भी बोलिए, डोंट वरी, लेकिन डाउट रेगुलरली क्लास में पूछा करिए। नेक्स्ट थिंग, आप जितने भी क्वेश्चन आंसर लिखते हैं इंग्लिश में ही लिखते हैं, ठीक है। तो लिखने की बजाय, आप लिखेंगे तो ऑब्वियसली, लिखने से ज्यादा आप उन्हें जब याद करेंगे या जो भी आप बुक्स पढ़ते हैं उन किताबों को जोर जोर से रीड करिए, ताकि आपका जो फ्लुएंसी है, ठीक है, आपका जो फ्लो होता है बोलने का, वो फ्लो उससे बहुत अच्छा होगा। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से क्विज करिए, ठीक है। आपके अगर हॉस्टल में रहते हैं तब तो बहुत बढ़िया, आपके जो भी रूममेट्स होंगे या जो भी फ्रेंड्स होंगे उनसे एक दूसरे से आप बात करके, एक पर्सन क्वेश्चन पूछेगा, एक पर्सन आंसर करेगा, फिर दूसरा वाला भी क्वेश्चन करेगा, फिर पहला पर्सन आंसर करेगा। इस तरह क्या होगा, आपको बोलने की जो झिझक है ना इंग्लिश में या फिर कम्युनिकेशन में जो भी दिक्कत आ रही है, बोलने का आपको आदत नहीं है, वो आदत खत्म हो जाएगी, ठीक है। एक दूसरे की हेल्प करना बहुत जरूरी है, ठीक है। जब आप एक दूसरे से इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो झिझक होता है ना बोलने का, वो हट जाएगा, जो हेजिटेशन आपका होता है वो हट जाएगा। तो ये चीज करके देखिए, ठीक है। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा यहाँ पर करेज मिल जाए, ठीक है, थोड़ा सा जो नर्वसनेस होता है वो कम हो जाए, ठीक है। और जो भी टॉपिक्स मैं देते जा रही हूँ उन टॉपिक्स को आप हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल सकते हैं, ठीक है। मैंने इंग्लिश में लिखने इसलिए बोला था ताकि आप कंटेंट प्रिपेयर करें, लेकिन कंटेंट में आपको यहाँ पर सिर्फ जो डाटा मिल रहा है या फिर जो भी आप रिसर्च करके ले आ रहे हैं, सिर्फ वही नहीं बोलना है, आपको अपने भी ओपिनियन डालने हैं, ठीक है। आप उस चीज के बारे में क्या सोचते हैं, उस बारे में सोच के देखिए, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि ये सारे टॉपिक पे लिखना बहुत ज्यादा मतलब अलग से सोचना पड़ रहा है या अलग से कुछ करना पड़ रहा है, तो आप एक काम करिए, आप जो भी टॉपिक पढ़ते हैं रेगुलर एवरीडे लाइफ में, जो कोडिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं या आईटी के डिपार्टमेंट में जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, उन सब पे लिखना स्टार्ट करिए, ठीक है। हर दिन एक पैराग्राफ लिखिए, हर दिन यहाँ पर वो पैराग्राफ लिख के बोलने की कोशिश करिए आईने के सामने खड़े रहकर। ये सारी चीजें रेगुलरली जब आप करेंगे ना, आपके बाकी सब्जेक्ट्स का आपको रिविजन हो रहा है, ठीक है। प्लस एक एक कोडिंग जब आप यहाँ पर एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ठीक है। मुझे पता है कि आपको हो सकता है कि कोई पर्सन को कोडिंग में कोई दिक्कत आ रही है तो वो अपनी फ्रेंड से सबसे पहले पूछता है, ठीक है। तो जब भी आप एक दूसरे से पूछते हैं तो इस तरह समझाइए जैसे कोई टीचर समझा रहा है, ठीक है। उससे क्या होगा, उससे आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा, ठीक है। एक दूसरे से क्विज करना शुरू कर दीजिए, वो क्वेश्चन पूछता है सामने वाला, आप आंसर करिए। थ्योरी पार्ट आपका कम होता है मुझे पता है, बट स्टिल कोशिश करिए कि जितना भी थ्योरी पार्ट है वो एक दूसरे से क्वेश्चन करके याद रख सके सारी चीजें, ठीक है। इससे आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहा है उससे याद भी हो जाएगा सारी चीजें, और प्लस आपका यहाँ पर जो हेजिटेशन है बोल नहीं पाने का, वो हेजिटेशन हट जाएगा, ठीक है। और मुझे पता है कि आपको सबसे ज्यादा दिक्कत यही हो रही है कि इंग्लिश में बोलने बोला जा रहा है, तो आपने इंग्लिश में लिखने का कभी कोशिश नहीं करते हैं या फिर इंग्लिश में लिखने में प्रॉब्लम आती है, तो वो सारी हेजिटेशन तभी हटेगी जब आप करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर जो भी क्वेश्चन देते हैं टीचर्स क्लास में, अदर देन ऑब्वियसली थ्योरी पार्ट में, थ्योरी पार्ट में जो भी आपका क्वेश्चन आता है उन क्वेश्चन के आंसर खुद से लिखने की कोशिश करिए, ठीक है। कोशिश मत करिए कि आप नेट से सर्च करें, जो भी किताब में लिखा है उससे आंसर निकाल कर अच्छे से फॉर्म करिए, आंसर किस तरह लिखना है उसका, किस तरह आंसर कितने नंबर का लगेगा, ये सारी चीजें खुद से थोड़ा दिमाग लगा के क्वेश्चन लिखने की कोशिश करो। फिर आपने जो आंसर लिखा वो टीचर से चेक करवाइए,
कि ये आंसर सही है या नहीं। अगर वो सही बोल देते हैं तो उस आंसर को प्रिपेयर करके रखिए, और नेक्स्ट टाइम जब आप यहाँ पर क्विज करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ तो सबका अलग अलग आंसर आएगा। तो सेम क्वेश्चन रिपीट करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने खुद से ये आंसर लिखा है तो अपना कहीं ना कहीं आपका थोड़ा बहुत एक कह सकते हैं पर्सनल टच हो जाता है। ठीक है, एक ने आंसर एक्टिव वॉइस में लिखा, एक ने आंसर पैसिव वॉइस में लिखा, ये सारे चेंजेस आते रहते हैं, तो किसी का भी आंसर सेम नहीं रहेगा। या कह सकते हैं कि सिमिलर तो होगा ही ऑब्वियसली, क्योंकि सही आंसर एक ही रहता है, तो सिमिलर रहेगा लेकिन सेम नहीं रहेगा। इससे क्या होगा, इससे आप आराम से एक दूसरे से पूछ सकते हैं क्वेश्चन। अगर आपको मान लीजिए कि आपको अपना आंसर सही नहीं लग रहा है या आपको डाउट हो रहा है कि आपका आंसर सही नहीं है, तो आप अपने फ्रेंड से भी पूछ सकते हैं। दोनों को डाउट हो रहा है, दोनों को नहीं समझ में आ रहा है, तो आप टीचर से पूछिए। ठीक है, इस तरह आपको ये सारी चीजें फॉलो करके एवरीडे लाइफ में आप हर एक सब्जेक्ट में रिविजन भी कर लोगे और कम्युनिकेशन का भी प्रैक्टिस आपका होता रहेगा। क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको यही हो रही है कि आपको हेजिटेशन बहुत ज्यादा है, आप झिझक रहे हैं यहाँ पर आके बोलने में, आपको प्रॉब्लम हो रही है कि हम क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे। ये जो थॉट्स होते हैं ना आपके दिमाग में कि कैसे बोलेंगे, कुछ गलत हो गया, तो ये सारी चीजें आपको रोकती हैं आगे बढ़ने से। तो इन सब का नहीं सुनना है। ठीक है, जैसे भी जो भी समझ में आ रहा है टॉपिक के बारे में वो बोलना है। यस, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आप लोग क्यों नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं बच्चों? सी आई हैव गिवन यू परमिशन, जो भी आप सोचना चाहते हो, आपके पास टॉपिक तो होगा। बहुत सारे बच्चे अटेंड किए थे लास्ट क्लास, उससे पहले वाला क्लास भी, जिस क्लास में टॉपिक दिया था, बहुत सारे स्टूडेंट अटेंड किए थे क्लास में। ठीक है, आपको जो समझ में आ रहा है उस टॉपिक में, अगर पूरा टॉपिक ही नहीं समझ में आ रहा तो पूछो तो सही मुझसे कि मैम ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, एक बार समझा दीजिए। आप पूछेंगे भी नहीं, फिर उसके बाद बोलेंगे भी नहीं, तो फिर कैसे चलेगा? ये कम्युनिकेशन की क्लास है ना। यहाँ पे मैं कोडिंग बता के मैं टाइम आपका नहीं निकाल सकती हूँ कि आप चुपचाप बैठ के बस टीचर की बात सुन रहे हो, टाइम निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको बोलना है। यस, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आप लोग जल्दी जल्दी प्रिपेयर करके यहाँ पर बोलिए, हैंड रेस करिए जो जो प्रिपेयर हैं। इंग्लिश हिंदी जिसमें बोलना चाहते हो बोलो, लेकिन बोलना है आपको यहाँ पर। यस, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बोलेंगे या फिर मैं अटेंडेंस निकालू 2 दिन का? क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने समझाया था आपको किस तरह लिखना है, स्पीच किस तरह प्रिपेयर करना है। यस मोहित। Yes, ma'am. Good morning, all of you. My name is Mohit Anand. I am here to present my ideal. Everyone has a hero or ideal in their life. I have one too. Some people might follow a footballer, a politician, an actor, or a writer as their ideal. But in my case, none of them are my ideal. My ideal is my father. There are so many reasons behind that. My father is the person who has the biggest contribution to my life. He is a businessman. He came from a very ordinary family. Yes, now you are able to hear my voice. Yes, as I was saying कि मोहित आपका यहाँ पर कंक्लूजन नहीं था स्पीच में। ठीक है, कंक्लूजन यानी कि आपको बताना है कि अगर आपके फादर यहाँ पर आपके आइडल हैं तो आपने उनसे क्या क्या सीखा और आप लाइफ में आगे क्या क्या सीखेंगे उनसे। ठीक है, वो चीज इंक्लूड करना है। रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आप लोग को मैंने ऑप्शन दे रखा है, जरूरी नहीं है कि इंग्लिश में बोलना है।
जो भी टॉपिक है आप हिंदी में सोचिए, 10 लाइन 5 लाइन, ठीक है, बोलने की कोशिश करो बस, ठीक है, जितना भी समझ में आ रहा है उतना बोलो, लेकिन बोलो। Yes, anybody else who would like to give their speech? Raise your hand if you want to give your speech. Yes, rest of the students, आप लोग बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? चलिए, नहीं बोलेंगे तो मैं काम करती हूँ, मैं और एक दिन आपको देती हूँ, लेकिन नेक्स्ट क्लास में आप लोग सबको बोलना है। एंड आई हैव ऑलरेडी गिवन यू एन ऑप्शन, हिंदी में बोलिए, इंग्लिश में बोलिए, जहाँ से बोलना है बोलिए, लेकिन मुझे यहाँ पर जितना अटेंडेंस है उतने लोगों का यहाँ पर मुझे चाहिए, ठीक है। यू हैव टू स्पीक मिनिमम 1 मिनट बोला है, मिनिमम 1 मिनट बोलना है, ठीक है। यस नीरज, इफ यू वांट टू deliver your speech, Neeraj, you can raise your hand. I will allow you to unmute yourself. चलिए ठीक है, काम करते हैं, तो यहाँ पर ये सेक्शन एंड करते हैं। वैसे भी आप लोग प्रिपेयर लेकिन करिए, ठीक है, जैसे बोलना है आप बोलने की कोशिश करिए।